یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق قومی تعلیمی پالیسی 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ملک کو ایک روشن مستقبل کی راہ پر کرے گی گامزن. پریکشا پہ چرچا پروگرام کے تحت طلباء، والدین اور اساتذہ کے ساتھ کیا استفسار. ایل جی منوج سنہا نے ایک میٹنگ کے دوران حالیہ بجٹ کے تحت کیے گئے اعلانات کی عمل آوری کا ایک میٹنگ کے دوران لیا جائزہ. جموں کشمیر انتظامیہ نے تعلیمی شعبے میں بہتری لانے کے لیے کیے کئی اقدامات. رواں مالی سال کے دوران تعلیمی سیکٹر پر کیے جائیں گے 11,832 کروڑ روپے صرف. اور ملک میں قومی سطح کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک لگائے گئے 1,84,31,00,000 کووڈ مخالف ٹیکے. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بھارت کو ایک نئے مستقبل کی طرف لے جائے گی. نئی دلی میں آج پریکشا پہ چرچا پروگرام کے تحت طلباء، اساتذہ اور والدین کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی کے لیے مشاورتی عمل کافی وسیع رہا اور اس سلسلے میں ملک بھر سے لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا. انہوں نے کہا کہ 20ویں صدی کی غیر مؤثر پالیسیاں اور خیالات 21ویں صدی میں بھارت کے ترقیاتی عمل کو آگے نہیں لے جا سکتے. انہوں نے کہا کہ ملک کو وقت کے ساتھ ساتھ بدلنا ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے اور اسے مؤثر طریقے پر بروئے کار لایا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ طلباء میں امتحان سے پہلے کا تناؤ ایک عام بات ہے. انہوں نے طلباء کو صلاح دی کہ وہ امتحانات سے نہ ڈریں کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کامیابی کے ساتھ امتحانات کا مقابلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ والدین اور اساتذہ کے ادھورے خوابوں کو بچوں پر نہیں تھوپا جا سکتا ہے. نریندر مودی نے کہا کہ طلباء کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان کمزوریوں کی نشاندہی کرنی چاہیے جو انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے نوجوانوں کے لیے لاتعداد مواقع دستیاب ہیں اور انہیں ان مواقعوں سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. انہوں نے لڑکیوں کو بااختیار بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے اس دوران کئی دیگر اہم معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا. واضح ہے کہ پریکشا پہ چرچا پروگرام وزیر اعظم نے سال 2018 میں شروع کیا تھا اور اس پروگرام کے تحت وہ والدین، اساتذہ اور طلباء کے ساتھ استفسار کر کے امتحانات کے تعلق سے ان کی تشویش کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم پروگرام کے دوران طلباء کی بھی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ امتحانات کے تناؤ پر قابو پا سکیں. ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کافی تعداد میں طلباء، اساتذہ اور والدین نے وزیر اعظم کے اس پروگرام میں شرکت کی. دریں اثنا آرمی پبلک اسکول ادھمپور کی 9ویں جماعت کی طالبہ اریکا جارج نے بھی پریکشا پہ چرچا پروگرام کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات کی اور وزیر اعظم نے ان کے استفسار کا بہترین انداز میں جواب دیا. اس حوالے سے ہمارے ادھمپور کے نمائندے نے ہمیں یہ تفصیلات دیں. آج وزیر اعظم کا پریکشا پہ چرچا پروگرام تھا جس میں وہ ملک کے کروڑوں طلباء سے مخاطب ہوئے. ایسے میں اریکا جو ادھمپور کے آرمی پبلک اسکول کی 9ویں جماعت کی طالبہ ہے کی خوشیوں کو انتہا نہ رہی جب اسے وزیر اعظم شری نریندر مودی سے سوال پوچھنے کا موقع ملا. پروگرام کے بعد اریکا نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ ایسے کیا. میں بہت خوش ہوں کہ پورے جے این کے بہاف پہ میں جے این کے کو پریزنٹ کر پائی ہوں پرائم منسٹر سر کے سامنے. یہ ایک بہت ہی موٹیویشنل چیز تھی میرے لیے، میرے پورے اسکول کے لیے. جے این کے جیسا جو شہر ہے یہاں پہ رورل ایریاز بہت زیادہ ہے تو میرے خیال سے یہاں پہ جتنے بھی بچے جو رورل ایریاز میں وہ بھی بہت موٹیویٹ ہوئے ہوں گے اور انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ پی ایم سے بات کرنا ایک صرف سپنا ہی نہیں، پاسبل بھی ہے. ان کے من میں جو بھی کویشچنز ہیں وہ ان سے پوچھ پائیں گے اور میرے خیال سے بہت ایک خوشی کی چیز ہے. بہت سارے لوگ انسپائر ہوئے ہوں گے اور میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں اس چیز سے. شعبہ خبر کے لیے انل دوبے، ادھمپور. قومی تعلیمی پالیسی کے تحت آج مشن ڈائریکٹریٹ ICDS نے چھوٹے بچوں کے لیے نئے قدم نامی تعلیمی نصاب جاری کیا. اس موقع پر چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا موجود تھے. اس نصاب میں چھوٹے بچوں کی بہتر جسمانی و ذہنی نشوونما کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکرٹری نے آنگن واڑی مراکز کے رول کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ گاؤں، دیہات اور شہروں کو تغذیہ کی کمی سے پاک کرنے کی طرف خصوصی توجہ دی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ابتدا سے ہی بچوں کو بہتر غذا دی جانی چاہیے تاکہ وہ آگے جا کر تندرست اور بہتر شہری بن سکیں. کمشنر سیکرٹری شیتل نندا نے اس موقع پر ECCE نصاب کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا.
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक मीटिंग के दौरान साल 2022-23 के लिए ऐलान किए गए बजट के तहत इक़दामात की अमल आवरी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि तालीम, तिबी निगहदाश्त, तरक्याती शोबों, रोजगार, नौजवानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने और समाजी सेक्टरों की स्कीमों के लिए रकूमात में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तरक्याती और फलाही स्कीमों के फवाइद निचली सतह पर समाज के हर एक फर्द तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि समाजी तब्दीली के इदारों को मुस्तहकम करने और इक्तिसादी तरक्की को तक़वियत बख्शने के लिए मुअस्सर और फ़ाअल मनसूबाबंदी की जा रही है। उन्होंने तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के माबैन बेहतर तालमेल और इस्तेहकाक को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सेक्टरों में आम लोगों तक बेहतर से बेहतर सहूलियात पहुंचाने में भी कोई दकीका फरोगजाश नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि आम लोगों तक अराजी से मुतालिक बेहतर सहूलियात पहुंचाने से माल महकमे के कामकाज में मजीद शफाफियत आएगी। जम्मू में G2C खिदमात शुरू करने और महकमे माल के IEC वीडियोज जारी करने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 1662 पटवार हलकों को इदारा जाती शक्ल दी जा रही है और पटवारियों के लिए दफातर कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस मौके पर बताया गया कि पटवारी अपने अपने पटवार हलकों में सोमवार से जुम्मे तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लोगों के लिए दस्तयाब रहेंगे। LG ने कहा कि अवाम और लोगों के दरमियान राबिते को बढ़ाने के लिए ई-गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 बरस के दौरान महकमे के कामकाज में काफी बेहतरी आई है। उन्होंने हर पटवार एक पटवार खाना प्रोजेक्ट रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने के लिए माल महकमे और जिला इंतजामिया की तारीफ की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी के अलावा कई दीगर अफसरों ने भी खिताब किया। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तालीमी शोबे में नुमाया तब्दीली लाने के लिए कई अहम फैसले लिए ताकि निज़ाम में शफाफियत, जवाबदेही, मसावत और मियार को यकीनी बनाया जा सके। स्कूली तालीम महकमे ने कई इख्तराई प्रोजेक्ट शुरू करने के साथ साथ मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों की मुअस्सर अमल आवरी को भी यकीनी बनाया। इलावा अजीम मौजूदा निसाब में बेहतरी लाने के लिए भी इक़दामात किए गए। हाल ही में ऐलान किए गए बजट में तालीमी महकमे के लिए 11,832 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए। महकमे ने मिड डे मील स्कीम की अमल आवरी, किंडरगार्टन्स और वर्चुअल क्लासरूमों का क़याम अमल में लाने के साथ साथ तलाश ऐप भी शुरू की। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि रवा माली साल के दौरान यूटी के सरकारी स्कूलों में 500 किंडरगार्टन कायम किए जाएंगे ताकि बच्चों के इंदिराज में इजाफा हो सके। हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीम के मियार को बेहतर बनाने के लिए 518 स्मार्ट क्लासरूम कायम किए जाएंगे। आला तालीमी शोबे को दवाम बख्शने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। रवा माली साल के दौरान 7 कॉलेज इमारतों को मुकम्मल किया जा रहा है, जबकि टाटा टेक्नोलॉजी के इश्तराक से जम्मू और श्रीनगर में CIIIT कायम किए जाएंगे। नए बजट में 20,000 अंडर ग्रेजुएट तलबा को हुनरमंदी से मुतालिक तरबियत दी जाएगी। मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 1,84,31,00,000 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ साथ मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह बढ़कर 98.76% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 1,900 कोरोना मरीज शिफायाब हुए हैं और इस मुद्दत के दौरान 1,300 नए मुस्बत मामलात की भी निशानदही हुई है। मुल्क में अब सरगर्म कोविड मरीजों की कुल तादाद 13,672 है। इधर जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 31 कोरोना मरीजों की निशानदही हुई है, जिनमें 24 ट्रैवलर हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 13 मरीज शिफायाब हुए हैं और अब यूटी में सरगर्म कोरोना मरीजों की तादाद 169 हो गई है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जम्मू शाख में आज अदालत आलिया के साबिक जज जस्टिस गिरधारी लाल रैना की वफात के सिलसिले में एक फुल कोर्ट रेफरेंस मुनाकिद हुई। इस मौके पर एडवोकेट जनरल और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के सदर ने जस्टिस गिरधारी लाल रैना की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और दीगर जज साहिबान ने सोगार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया और आनजहानी की आत्मा की शांति के लिए दुआ की। तुर्कवांगाम शुपैया में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान कल रात शुरू हुआ तसादुम आज सुबह इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि इस तसादुम में टाक मोहल्ला शुपैया से ताल्लुक रखने वाला एक मकामी मिलिटेंट मारा गया। जाए तसादुम से एक पिस्तौल और एक हथगोला बरामद किया गया है।
डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने सीनियर ग्रेड कांस्टेबल फारूक अहमद भट्ट को एशियन गेम्स 2022 के लिए ड्रैगन बोट खेल मुकाबलों के लिए इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिसर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। डीजीपी ने कहा कि इस कामयाबी से जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करने वाले दीगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई हो रही है और इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बाइस इफ्तिखार करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुबारक गुल ने आज नूरबाग जाकर वहां आग की वारदात से मुतासरा कुंभों के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन इक़दामात करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के 4 रोजा दौरे पर रवाना हो रहे हैं। पहले मरहले में तुर्कमेनिस्तान का दौरा करेंगे। किसी भारतीय सदर का तुर्कमेनिस्तान का यह पहला दौरा होगा। यह दौरा इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि यह दौरा तुर्कमेनिस्तान के साथ भारत की सफारत ताल्लुकात के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने हम मनसब के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही वक्त की सतह की बाहमी बातचीत होगी और कई मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया 4 अप्रैल को नीदरलैंड्स का भी दौरा करेंगे। वजीर खारजा अजय शंकर ने कहा कि भारत हमेशा तजादात और मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के जरिए से हल करने के हक में है। नई दिल्ली में आज अपने रूसी हम मनसब सर्गी लावरोव के साथ एक मीटिंग में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो दौरे जदीद के मामलात और तशवीश पर तफसीली तबादले ख्याल करेंगे। उन्होंने कहा कि मीटिंग मुश्किल बैन-अक़वामी माहौल के मौके पर हो रही है। अजय शंकर ने कहा कि भारत ने ताउन के अमल को वसअत दी है। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के दरमियान बाहमी रिश्ते लगातार तक़वियत पा रहे हैं। अपने इब्तिदाई कलमात में रूस के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और रूस एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस वर्ल्ड ऑर्डर में तवाजुन बरकरार रखने के हक में है। उन्होंने कहा कि सदर पुतिन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए नई ख्वाहिशात भेजी हैं। इससे पहले रूस के वजीर खारजा कल शाम भारत के 2 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे थे। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 16.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक कौमी तालीमी पॉलिसी 21वीं सदी के तकाजों को पूरा करते हुए मुल्क को एक रोशन मुस्तकबिल की राह पर करेगी गामजन। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के तहत तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के साथ किया इस्तिफ़सार। एलजी मनोज सिन्हा ने एक मीटिंग के दौरान हालिया बजट के तहत किए गए ऐलानात की अमल आवरी का एक मीटिंग के दौरान लिया जायजा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तालीमी शोबे में बेहतरी लाने के लिए किए कई इक़दामात। रवा माली साल के दौरान तालीमी सेक्टर पर किए जाएंगे 11,832 करोड़ रुपए सर्व। और मुल्क में कौमी सतह की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक लगाए गए 1,84 करोड़ 31 लाख कोविड मुखालिफ टीके। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।